का डिफेक्ट होता है, जैसे पॉइंट डिफेक्ट. So we'll discuss only one type of defect, that is your point defect. And point defect में 3 types are there, that is what they mean vacancy, interstitial and impurity. And under that we'll discuss the Schottky defect and we'll discuss the Frankel defect. ठीक है, तो Schottky defect का एक derivation है, blackboard is not approachable, so I will show you. ये mathematical derivation है, just see this and note down this derivation. छोटा सा ये सिंपल सा है, दोनों में ऑलमोस्ट सेम टाइप का है. सो इन स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, दैट इज द though we are saying crystal is a regular and periodic arrangement of atoms, but in real crystal there are irregularities are always there. Plucking an interior atom out of its regular site and placing on the surface. So कहीं से भी हम बताते हैं that there is a displacement of this atom from this position to that position. So this process also requires some amount of energy. Okay, so this increases also disorder. ठीक है, this disorder increases an increase in entropy, and generally we are saying this is because of the thermal fluctuation this process is happening. Because of this thermal fluctuation we are saying this type of disturbance, this type of displacement is there. So ये भी एक disorder है, and ये disorder भी होता है because of increase in entropy. So यहाँ पे हम एक thermal equilibrium condition let us discuss. That is, at a certain number of lattice vacancies can be created in a कितने number of, that is how the what is the number of ways this vacancy will be created. We will write a formula for that, and accordingly we'll derive. Finally, we'll write an expression for this. Schottky defect. Okay, write an expression for this Schottky defect. So suppose you are saying one vacancy is created or a one pair of vacancies created in ionic crystal. Suppose you are saying one pair of vacancies created, मतलब ये कहाँ पे create होगा? Inside the crystal. So total number of vacancies कितने atoms है and कितने vacancy can be created. So ये इसको भी हमें treat करना पड़ेगा in a probability way. We have to treat this phenomena in a probabilistic manner. So the total number of ways in which we can pick up n pair of atoms ओके. सो जो टाइम से ज्वाइन नहीं करते सब एक एक करके आते हो, डिस्टर्बेंस होता रहता है क्लास में. So this is the energy required to take an atom. Suppose EV is the energy required to take an atom from a lattice site to the inside the crystal to the lattice site on the surface. Vacancy create होता है तो मतलब inside vacancy create रहता है तो atom is moving to the surface. So let us consider n pair of vacancies are created. EV क्या है? Suppose it is energy required to create one pair of vacancy, and anyway is the increase in internal energy. अगर यहाँ पे बताते हैं
सपोज वी आर सेइंग, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, EV इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन एटम फ्रॉम यहाँ पे पेयर ऑफ एटम होगा, pair of atom from one electrocyte inside the crystal to the electrocyte on the surface. So this process, in this process, अगर n pair of vacancies are created, then n even amount of energy is required. So ये जो energy we are saying, this energy is required, and this energy increases the internal energy of the system, thermodynamical manner. Okay. So this is an internal increase energy, internal energy associated with the production of n pair of isolated vacant sites. So अभी यहाँ पे इस चीज को हम देखेंगे, the total number of ways in which we can pick up n pair of atoms from the crystal consisting of n atoms is, मतलब n pair of vacancy create होगा, कैसे, कहां से क्रिएट होगा, आउट ऑफ n एटम्स. टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल में बहुत सारे नंबर होता है, कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ एटम इनसाइड द क्रिस्टल, एंड let n is the number of vacancies created. Okay, so what is the total number of ways in which we can pick up n pair of atoms from the crystal consisting of n atoms? So this is a probability, हम इसको लिख सकते हैं, that is W equals to n factorial by n minus n factorial into n factorial and इसका स्क्वायर. अगर A की वैकेंसी क्रिएट होता, देन यहाँ पे स्क्वायर हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे आयोनिक क्रिस्टल लिया है, बिकॉज यू हैव टेकन ओनली फॉर दिस आयोनिक क्रिस्टल. सो फॉर आयोनिक क्रिस्टल द टोटल नंबर ऑफ व्हिच वी यूज n पेयर के लिए यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा. खाली n वैकेंसी होता, पेयर मतलब डबल हो गया, मतलब यहाँ पे स्क्वायर आ गया. ओके, एंड दिस डिसऑर्डर इंक्रीजेस ड्यू टू क्रिएशन ऑफ n vacancies. n vacancies, the corresponding increase in entropy is given by कितना, इसमें corresponding increase in entropy जो होगा, that is S equals to Kb and W. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है. S equals to Kb ln W, that is Kb ln n factorial by n minus n factorial into n factorial, ठीक है. So the corresponding change in free energy. So what is the corresponding change in free energy thermodynamically? That is F equals to U minus Ts. Corresponding change in free energy is F equals to U minus Ts. हाँ बच्चे, आपको दिख रहा है सारे, स्क्रीन सही से दिख रहा है? ब्लैक बोर्ड, उधर ब्लैक बोर्ड ही समझ में आ जाएगा, देखो, नहीं तो आई विल राइट दैट ऑन ब्लैक बोर्ड. F equals to U minus Ts, and हमने U क्या डिफाइन किया था? U we have defined, that is U is the corresponding increase in internal energy. Okay, and यहाँ पे that value equals to n EV. Sorry, that is we have writing this an EP हो गई, V होना चाहिए, n EV minus T into Kb, and this is T into S. S का वैल्यू कहाँ पे, देखो W का वैल्यू यहाँ पे हमने लिया, this is equation 1. This is your equation 1 and this is your equation 1 को हमने यहाँ पे यूज किया है, W का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है. देन यहाँ पे यूजिंग 1 S को अगर इक्वेशन 1 लेंगे, देन दिस इज F इक्वल्स टू U माइनस TS, दैट इज NEP माइनस दिस. यहाँ पे हमने S का वैल्यू ऊपर वाला इक्वेशन में जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया है, एंड इसी को हमें सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू यूज वन फॉर्मूला. सो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, दैट इज द स्टिरलिंग्स फॉर्मूला, ठीक है. फैक्टोरियल को लॉग निकालने के लिए वन फॉर्मूला इज देयर, दैट इज log n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n log n माइनस n. ये फॉर्मूला याद रखना है, एंड उसी फॉर्मूला को यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा फॉर एवरी फैक्टोरियल टर्म, ठीक है. log n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n log n माइनस n. सो अगर हम इसको फॉर्मूला को यहाँ पे लिखेंगे, देन दिस इज ln n फैक्टोरियल बाय n माइनस n n फैक्टोरियल, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे स्क्वायर है तो ln में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी. देन एवरी टर्म के लिए यहाँ पे log, आपको फॉर्मूला पता है, log a by b equals to log a minus log b. अकॉर्डिंगली log n factorial, log n minus n factorial, log n factorial minus small n factorial. And इसको every step में you have to use this Stirling's formula, that is जहाँ पे n factorial है you have to like n log n minus n, n minus n factorial है you have to write n minus n log n minus n minus n minus n. ये सब करके इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, then we'll get this value 2 n log n
that is n minus n, ln n minus n and n log n. ठीक है. So अभी यहाँ पे this formula, this value, whatever value we got, we have to use this value in this equation 2. Using this value in equation 2, what we can get? If we use this value in this equation, then what value we are getting? That is f and pb minus this thing. यहाँ पे instead of this value equation 2 में we are putting this value. ठीक है. F का value, we are writing the value of f equals to nep minus 2 kbt nln, and this is n minus n ln n minus n minus n ln. ठीक है. अभी यहाँ पे देखो ये आ गया क्या है? दिस इज द करेस्पॉन्डिंग चेंज इन फ्री एनर्जी. क्यों? दिस इज देखो हम यहाँ पे ये क्या बताते हैं? दिस इज ए थर्मल फेनोमेना. तो टेम्परेचर वेरी होने से डिजॉर्डर इंक्रीज होता है. डिजॉर्डर इंक्रीज होने से करेस्पॉन्डिंग चेंज इन फ्री एनर्जी होता है. सो दिस इज ए टेम्परेचर फेनोमेना. सो यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर मान दें, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, लेट अस डिफरेंशिएट दिस. सो डिफरेंशिएटिंग दिस विद रेस्पेक्ट टू n, तो हम क्या आएगा? दिस इज डेल एफ बाय डेल एन इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है. दैट इज डेल एफ बाय डेल एन इक्वल्स टू, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू n, दिस इज ep minus 2 kbt, एंड दिस इज, ये तो कांस्टेंट टर्म है. n देखो यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म इज स्मॉल n, दैट इज कितना वैकेंसी क्रिएट हो सकता है, दैट इज, एंड जो n इज द टोटल नंबर ऑफ एटम, दैट इज ए कांस्टेंट. तभी हमें n के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे. सो कितना आ जाएगा? दिस इज ep minus 2 t kb ln n minus n by n. ठीक है. इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे देन वी कैन राइट 2t kb ln n minus n by n. ठीक. सो यू जस्ट नोट डाउन दिस डेरिवेशन. तो यहाँ से आता 4 लाइन ही है, ज्यादा कुछ है नहीं. सो यू आर गेटिंग दिस थिंग. अभी the free energy in thermal equilibrium, that is ये जो thermal at constant temperature f equals to u minus ts, that is remaining constant. So इसका differentiation should be equals to 0. इसको हमने जो differentiate किया free energy in thermal equilibrium, that value equals to 0. So we can write this is EP, जो differentiate करने के बाद we are getting whatever value, that should be equals to 0. This expression is showing after differentiating we are getting this expression EP minus 2 t kb ln n minus n by n equals to 0. एंड यहाँ से 0 को इक्वेट करके we have to derive an expression for n. इसी को सॉल्व करके n क्या है वो निकालना है, और कुछ नहीं किया इसमें. ठीक है. सो दैट इज, दिस इज ln n minus n by n. इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लिया इधर का दोनों साइड. सो दिस वैल्यू इक्वल्स बाय n इक्वल्स टू, यहाँ से आप इसको देख सकते हो ln n minus n by n equals to ep by 2 kbt. So this is, यहाँ पे ln को अगर हटाएंगे देन यहाँ पे विल गेट एक्सपोनेंशियल ep by 2 t kb equals to n minus n by n, एंड इसको रिवर्स कर लेंगे देन विल गेट n by n minus n equals to एक्सपोनेंशियल minus ep by 2 t kb. और वी कैन राइट स्मॉल n equals to कैपिटल N एक्सपोनेंशियल minus ep by 2 t kb. कैन एनीवन टेल मी, ये जो मैंने ग्रीन करके लिखा है यहाँ पे n माइनस n आना चाहिए, मैंने यहाँ पे n लिखा, क्यों लिखा बताओ? एक्चुअली होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन n माइनस n होना चाहिए, यहाँ पे खाली n लिखा, क्यों लिखा? कैन एनीवन टेल मी? हाँ बच्चे बोलो. यहाँ पे n माइनस n आना चाहिए मैथमेटिकल फॉर्मूला के हिसाब से, बट मैंने यहाँ पे ओनली n ही लिखा है, क्यों लिखा? Because n minus n is nearly equals to n, since just number of capital N, that's total number of atoms, is much more, बहुत ज़्यादा as compared to the number of vacancy created. ठीक है? That's why we have written this thing as n instead of n minus n. We are written this thing as n. ठीक है? So this is a, so इसका भी थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, फॉर्मूला भी आ सकता है, इतना ही है इसमें. लॉन्ग क्वेश्चन होता तो ये बहुत एक सॉलिड एंड इजी क्वेश्चन होता है, इस चैप्टर में आराम से इसका डेरिवेशन इजीली कर सकते हो. ठीक है? तो दिस इज योर स्कॉटकी डिफेक्ट इन आयोनिक क्रिस्टल. ठीक है? अभी बताओ व्हाट डू मीन बाय फ्रैंकल डिफेक्ट, बताओ. कैन एनीवन टेल मी?
फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है? यस समवन सेंड में अटेंडेंस सेंड कर दो. ओके, फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है? दैट इज फ्रेंकल डिफेक्ट में हम ये चीज बताते हैं, दैट इज कल हमने डिस्कस किया था, वैकेंसी जो क्रिएट हो गया, दैट एटम इज मूविंग टू द स्पेस बिटवीन द टू, जो एटम के बीच में क्रिस्टल में जो इंटर एटमिक स्पेसिंग होता है, उसमें जो इंटरस्टेडियल पोजीशन होता है, सम एटम्स आर नाउ शिफ्टिंग टू दैट पोजीशन एंड दिस इज नोन एज योर फ्रेंकल डिफेक्ट. ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो ऊपर वाला ही तो समझ में आया आपको, दैट इज वही फॉर्मूला है, दैट इज कितना नंबर ऑफ वैकेंसी क्रिएट हो सकता है, प्रोबेबिलिटिकली इसको हमने लिख दिया, देन थर्मोडायनामिकली इसका एंट्रोपी के लिए फॉर्मूला निकाला एंड एनर्जी कितना आया, चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस व्हाटएवर द डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड, द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन फ्री एनर्जी इज दिस, ये लिख लिया एंड उसके बाद हमने ये लिखा नंबर ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट कितना आया एन, उसको सॉल्व करके लिख लिया. ठीक है, फ्रेंकल में भी वही चीज करेंगे, पर यहाँ पे दो चीज आ रहा है, दो फैक्टर आ रहा है. सो व्हाट इज द टू फैक्टर्स क्या है? ओके, सो यहाँ पे क्या है, वन एटम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए लैटिस साइड इनटू द इंटरस्टिशियल साइड, दैट इज it is a position, interstitial is a position in between the atoms which is not occupied by any atom, that is a void space. So we can calculate number of Frenkel defect and equilibrium at a particular temperature T, कितना हो सकता है. So let us consider EF is the energy required to displace an atom from a regular lattice side to an interstitial position and N is the, अब देखो एक एटम अगर अपना पोजीशन से शिफ्ट होके इंटरस्टिशियल पोजीशन में जा रहा है, मतलब वहां पे के लिए भी इट इज आल्सो रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, सो लेट दैट एनर्जी को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है एज EF एंड N क्या है, कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ atoms, capital N is the total number of atoms and Ni is the total number of interstitials. Ni is the total number of interstitials. Then the number of ways in which n Frenkel defect can be formed will be given by, देखो वहां पे क्या था, एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला था, इसको स्क्वायर किया था n पेयर के लिए, पर यहाँ पे क्या है, देखो जब एटम अपना रेगुलर पोजीशन से इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाएगा, देन ये इसका कितना, इसका प्रोबेबिलिटी हो सकता है, कितने नंबर ऑफ वेज से जा सकता है, सो दैट विल डिपेंड ऑन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है एंड टोटल नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल पोजीशन कितना है. एन के ऊपर डिपेंड करेगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स, Ni द टोटल नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल Ni इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा. सो वी कैन से n स्मॉल n इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट. सो W इक्वल्स टू, यहाँ पे दो फैक्टर आएगा, दैट इज n फैक्टोरियल बाई n माइनस n factorial into n factorial, that is ni factorial into ni minus n factorial n factorial. So the corresponding change in entropy is given by, corresponding change in entropy कितना हो रहा है, that value is same formula, S equals to entropy का formula kb ln w, that is kb ln of this factor. W का value क्या है, the value of W equals to n factorial by n minus n factorial into n factorial and ni factorial by ni minus n factorial into n factorial. अब यहाँ पे दो टर्म्स आया, तो इसका जब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा लेंथी और बड़ा टर्म आ जाता है, उसमें स्क्वायर आ जाता है, हमने 2 मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे 2 टर्म्स आ रहे हैं, then we can write the what is the corresponding change in free energy. The corresponding change in free energy is F equals to U minus TS, or we can write F equals to n minus EF minus TKB ln n into this thing. ठीक है, so यहाँ पे ln का इस चीज को using Stirling's formula, that is log n factorial equals to n log n minus n, for each term हमें लिखना पड़ेगा, and log का formula log a by log b equals to log a minus log b minus log c, उसी फॉर्म में इसको लिखेंगे. ठीक है, so this is ln of n factorial by n minus n factorial into n factorial minus this, and this is
n factorial by n minus n factorial into n factorial plus ln ni factorial into ni minus n factorial into n factorial. ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे देन यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है दैट इज दिस वैल्यू वी आर गेटिंग दिस वैल्यू एंड इस वैल्यू को भी कहाँ पे यूज करेंगे दैट इज दिस इज द फॉर्मूला फॉर द करेस्पॉन्डिंग चेंज इन फ्री एनर्जी F equals to U minus TS, that is NEF minus this thing. U is the internal energy, यहाँ पे internal energy का वैल्यू कितना है N into EF minus T KB ln का वैल्यू जो यहाँ पे आए यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. देन हम ये मानते हैं that at a constant temperature the corresponding change in free energy F equals to U minus TS and whatever that value we got, that value should be constant. ठीक है, so differentiating this with respect to n हमें क्या मिलेगा, that is del F by del n T equals to EP minus 2 kBT into this thing. So इसको भी solve करोगे तो हमें कितना मिल रहा है, that is we are getting this value equals to EF minus kBT ln n minus n ni minus n upon n square that equals to 0. Or we are getting ln of this quantity ln of n minus n into ni minus n by n equals to EF by kBT. Since n is much and this is n is much less than ni, then we can write this is, इसको अगर सॉल्व करेंगे फाइनली हमें क्या मिलेगा ln of n minus ni, क्योंकि यहाँ पे n is small as compared to n is small as compared to ni, so this is ln nni by n square that is CF by kBT. or we are writing this is n, इसको रिवर्स कर लेंगे तो n square by nni equals to minus CF by kBT exponential minus CF by kBT, or n square equals to nni exponential minus CF by kBT, or n equals to nni into exponential minus CF by kBT. So this is the total number of Frankel defect we are getting and derivation for this. ठीक है, समझ में कुछ आया या नहीं आया बताओ. हाँ बच्चे, समझ में कुछ आया? Yes, ma'am. आगे yes आकांक्षा. Akanksha, are you there in class or not? So this is the total. So this completes your third unit. थर्ड यूनिट का सारे टॉपिक कवर हो गया. थर्ड यूनिट में ऑलमोस्ट आपको सारे टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए नोन था. नाउ वी आर इंडिकेटिंग, यही एक ही लॉन्ग क्वेश्चन जो डेरिवेशन में आता है, मैथमेटिकल डेरिवेशन, बाकी किसी में और ज्यादा कुछ है नहीं. ठीक है, खाली इसमें नंबर ऑफ कितने का कंट्रीब्यूशन कैसा है, यू हैव टू ओनली
हाँ बच्चे, स्क्रीन शेयर किया, आपको कुछ दिखाई दे रहा है? यस मैम। ट्यूटोरियल का दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। दिख रहा है? ओके। मैम बट ओपन नहीं किया, आपकी मेल पे दिख रहा है जस्ट। अच्छा, पता नहीं क्या हुआ है इसमें, स्क्रीन का कुछ गड़बड़ हो गया है, इसमें दिख नहीं रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा है ये। बस बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कुछ। दिख रहा है बच्चे? अभी क्वेश्चन आंसर लिखा है, दिख रहा है? यस मैम। बच्चे भी दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ जी। क्वेश्चंस दिख रहे हैं? हाँ जी। यस मैम, यस मैम। ओके, क्वेश्चन क्या मैंने आंसर के साथ लिख लिया, सो दैट हम फटाफट लिख ले, ट्यूटोरियल कर सकते हैं। ठीक है, अभी बताओ, इफ द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.98 ग्राम पर सीसी एंड इट हैज FCC स्ट्रक्चर, सो अब बताओ, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ कॉपर, कितना उसका, ये आपको पता है, ऐसे तो सॉल्व कर सकते हो। क्यों, क्या गिवन है? डेंसिटी ऑफ कॉपर इज गिवन 8.98 ग्राम पर सीसी एंड ये FCC स्ट्रक्चर में है, सो यू हैव टू कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ कॉपर। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आता है ये क्वेश्चन? बताओ, कर सकते हो? कैसे करेंगे? हमें ए एंड इसका रिलेशन हमने डिराइव किया था,
that is relation between the lattice parameter and density. A equals to nm by n, capital N rho. तो यहाँ पे n क्या है? Avogadro's number. Okay, and small n क्या है? बोलो small n क्या है? Number of atoms per unit cell. And FCC में number of atom का contribution कितना होता है? 4 होता है. So हम यहाँ पे a का वैल्यू निकाल सकते हैं. A equals to this value equals to 4 into Avogadro's number. 4 into atomic weight. Atomic weight is given 63.5, and this is Avogadro number is नीचे n 6.023 into 10 to the power 23, and rho का density का value put करोगे तो you can get the value of this. ठीक है, you can get the value of this A. Value of A आ गया, atomic radius. अभी बताओ यहाँ पे what is the atomic radius of copper? Atomic radius of copper कैसे निकलोगी? निकल सकती है, बताओ. FCC है, इसमें R and A का रिलेशन जो है उसको आपको करना है. What is relation between R and A for FCC? बोलो, सबको आता है ये चीज? बताओ, R and A का रिलेशन बताओ फटाफट. FCC में what is relation between atomic radius R and lattice parameter A? That is cube as A. कितना होता है? अरे बोलो फटाफट. A is equal to 4 by root 3R. 4 by root 3R किसके लिए होता है? BCC के लिए होता है ना. FCC के लिए, FCC के लिए कितना होता है? 2 root 2 होता है कहीं पे? 2 root 2 का आता है? Yes, ma'am. R equals to A by 2 root 2 इतना होता है. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो कर सकते हो. एक सेकंड क्वेश्चन देखो. क्रोमियम has a BCC structure. Its atomic radius is 0.1249 nanometer. Calculate the free volume per unit cell. So what is free volume per unit cell? यहाँ पे क्या है? क्रोमियम का BCC स्ट्रक्चर गिवन है, एटॉमिक रेडियस इज आल्सो गिवन. सो इसमें आप वॉल्यूम निकाल सकते हो. पैकिंग फ्रैक्शन भी हम निकालते हैं जैसे. So what is the volume of an unit cell? That equals to A cube. And what is the total number of atomic occupancy? Atomic occupancy कितना है? BCC में 2 atom is occupied. ठीक है, सो 2 atom का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं. दैट इज 4/3 pi r cube into 2. ये करेंगे तो एटॉमिक वॉल्यूम हमें मिल जाएगी. सो इसके लिए हमें एटॉमिक रेडियस गिवन है, हम इससे निकाल सकते हैं. तो यूनिट सेल का साइज भी निकाल सकते हैं. यूनिट सेल क्या होता है? अभी बोला था आस्था ने. A and R का रिलेशन दैट इज 4/√3. A equals to 4/√3R और R equals √3/4A. ठीक है, सो हमारे पास क्या गिवन है? R गिवन है. सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ A. सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A क्यूब हमें A मिल गया, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगी. एंड एटॉमिक कंट्रीब्यूशन BCC में कितना है? टोटल एटम्स कितना होता है? द टोटल नंबर ऑफ एटम है R 2. सो हम यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन BCC यूनिट सेल इक्वल्स टू 2. सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन BCC यूनिट सेल कितना होगा? दैट इज 4/3 pi r cube into 2. इसका वैल्यू आ जाएगा. देन फ्री वॉल्यूम मतलब क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल minus volume occupied by the atoms. So that difference will give you the free volume of the unit cell. ठीक है, so ऐसे दो छोटे-छोटे क्वेश्चंस, ये आपका पुराना पढ़ा हुआ चीज है, ये आप कर सकते हो. आया क्वेश्चन 1 and 2 समझ में? Yes, ma'am. आया? अभी ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3. Write the Miller indices of a set of parallel planes which makes intercept in the ratio of 3a, 4b and 3p along x and y axis. ठीक है, इंटरसेप्ट along x and y axis and are parallel to z axis. अभी बताओ मिलर इंडिसेस कितना होगा? क्या इंटरसेप्ट गिवन है? x इंटरसेप्ट इज 3a, y इंटरसेप्ट इज 4b एंड z इंटरसेप्ट गिवन नहीं है. क्या गिवन है? इट इज पैरेलल टू z एक्सिस. सो इसका मिलर इंडिसेस कितना होगा? बोलो. मिलर इंडिसेस कितना होगा? बोलो फटाफट बोलो. मिलर इंडिसेस का फॉर्मूला क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट दैट इज a by 3a, b by 4b एंड पैरेलल टू z एक्सिस. मतलब z इंटरसेप्ट कितना लोगे? 0.
जीरो नहीं, इंटरसेप्ट जीरो नहीं, इन्फिनिटी होगा ना। पैरेलल हो गया मतलब जेड एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, जीरो पे तो कट नहीं करेगा, इन्फिनिट में कट करेगा। सो उसका इंटरसेप्ट आपका इनफाइनाइट होगा। अभी हम ये सबका रेसिप्रोकल लेंगे, तो दिस इज a by 3a, दिस इज b by 4b एंड दिस इज c by infinity। सो c by infinity कितना हो जाएगी, 0। एंड यहाँ पे 1 by 3, 1 by 4 एंड 1 by infinity। इनको अगर हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे देन कितना आ जाएगी, 12 एलसीएम, 12 by 3, 4 by 3, 4 by अगेन 12 by 4 एंड 0। सो इसका इंडिसेस आएगा 430। समझ में कुछ आया नहीं आया, वरना मैं फिर से इसको बता दूंगी। इतना उस दिन आप लोग आंसर भी दे रहे थे, मुझे लगा ये आपको समझ में आया होगा। बताओ, ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है, मिलर इंडिसेस वाला। What are the Miller indices of a set of parallel planes which makes intercept in the ratio of 3a ratio 4b along xy axis? xy axis मतलब x intercept given है, y intercept given है, and parallel to z axis मतलब z intercept is also given, जिसका वैल्यू है infinite. So 3 intercept is 3a 4b infinite, and Miller indices निकालने के लिए we have to make reciprocal of that thing. Reciprocal मतलब यहाँ पे a है तो ए दिया है तो उसको a by 3a करना पड़ेगा, खाली नंबर ही आता है, abc कहीं पे नहीं आता इंडिसेस में। a by 3a, b by 4b एंड c by